ڈاکٹر کی ضرورت ہے। اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ترمذی 1572۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ میونسپل کا آخری اجلاس، امام کا فٹ پاتھ تاجروں کے لیے قرارداد منظور کرنے کا مطالبہ و احتجاج۔ بی جے پی شمبھو گڑی تاجرین کو برخاست کرنے کے لیے اتر آئی احتجاج پر، میئر نے اجلاس کو کیا ملتوی۔ سے روزہ تبلیغ اجتماع کا 19 اتوار سے آغاز، اجتماع کی تمام تر تیاریاں مکمل۔ اجتماع گاہ پر روح پرور سما، عامة المسلمین سے شرکت کی اپیل۔ نوجوان نسل خود کو نشے کا عادی نہ بنائے، بری لتوں سے خود کو محفوظ رکھے، صحت پر توجہ دے، کھیل جسمانی و دماغی نشوونما کے لیے معاون۔ اربن ایم ایل اے دھن پال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کا آخری اجلاس میں فٹ پاتھ تاجروں کے لیے قرارداد منظور کرنے مجلسی ارکان کا احتجاج۔ میئر نیتو کرن کا اجلاس کے التوا کا اعلان، مجلس اور بی جے پی ارکان میں گرما گرم بحث۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی آخری اجلاس میں مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان نے فٹ پاتھ تاجرین کو کاروبار کی اجازت دینے قرارداد کی منظوری کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست احتجاج کیا، جبکہ بی جے پی ارکان نے شمبھو گڑی احمدی بازار کے انکروچمنٹ کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ میئر نظام آباد نیتو کرن شیکھر نے مجلسی ارکان کے شدید احتجاج پر ایجنڈے پر مباحث کے بغیر اجلاس کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ میئر کی صدارت میں موجودہ باڈی کا آج آخری میونسپل اجلاس کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر ڈپٹی میئر مجلس محمد ادریس خان، فلور لیڈر مجلس محمد شکیل احمد فاضل، کارپوریٹرز میر ارشاد علی سمیر، ماجد صدیقی، عبدالعلی باغبان، محمد نصیر احمد، معاون رکن محمد شہباز احمد نے کرسی صدارت پہنچ کر یادداشت پیش کی اور کہا کہ 15 جنوری کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے فٹ پاتھ تاجرین کو میونسپل پولیس عہدیداروں کی ہراسانی سے تحفظ کے لیے ماسٹر پلان کے انعقاد تک فٹ پاتھ پر کاروبار کی اجازت دینے، ٹیبل ایجنڈا شامل کرنے اور قرارداد منظور کرنے تحریری نمائندگی کی گئی تھی، تاہم اجلاس میں ٹیبل ایجنڈا شامل نہیں کیا گیا۔ ان قائدین نے اس خصوص میں اعتماد تک اجلاس کی کارروائی کو چلنے نہ دینے کا اظہار کیا۔ میئر نے اس خصوص میں ٹیبل ایجنڈا کو شامل نہ کرنے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں مجلسی ارکان نے شہر کے فٹ پاتھ پر چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو میونسپل اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے ٹیبل ایجنڈے کو پیش کرنے، ماسٹر پلان تک ان فٹ پاتھ تاجرین کو کاروبار کی اجازت دینے، قرارداد منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ میئر نے اس تجویز کو مسترد کرنے پر ڈپٹی میئر مجلس محمد ادریس خان، فلور لیڈر مجلس محمد شکیل احمد فاضل کی ہمراہ مجلسی کارپوریٹرز میر ارشاد علی سمیر، ماجد صدیقی، محمد نصیر احمد، عبدالعلی باغبان، معاون رکن محمد شہباز احمد کے باشمول مجلسی خاتون کارپوریٹرز نے اجلاس میں کرسی صدارت کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کیا اور ٹیبل ایجنڈے کے ذریعے فٹ پاتھ تاجرین کو کاروبار کی اجازت دینے، قرارداد منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اجلاس کی کارروائی روک دی۔ مجلسی ارکان کے شدید احتجاج پر بی جے پی ارکان نے مداخلت کرتے ہوئے شمبھو گڑی احمدی بازار کے
इंक्रोचमेंट को बर्खास्त करने का मुतालिबा किया, जबकि मजलिसी अरकान ने शहर के देवी रोड, राष्ट्रपति रोड, म्यूनिसिपल सर्कल, खलीलवाड़ी इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, स्वीट होम, खानगी दवाखानों की इंतजामिया की जानिब से सड़क को इंक्रोचमेंट करने और आवाम को मसाइल का शिकार बनाने के बावजूद पुलिस और बल्दिया की जानिब से कोई कार्रवाई न की, सिर्फ फुटपाथ ताजरीन को हिरासा करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और टेबल एजेंडे को पेश करते हुए करारदाद मंजूर करने तक इजलास की कार्रवाई को चलने नहीं दिया गया। इस सूरत हाल में मेयर ने तमाम जमातों के फ्लोर लीडर से अपने चैम्बर में मुशावरत की, ताहम तमाम जमातों कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी की जानिब से फुटपाथ ताजरीन को कारोबार की इजाजत देने की करारदाद की मंजूरी की मुखालफत की। इस तरह शदीद एहतजाज, बहस व तकरार के दौरान मेयर ने एजेंडे के नुकात पर मुबाहिस के बगैर इजलास को मुलतवी कर दिया। इजलास में कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार दीगर ने शिरकत की। सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरिस खान ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक माह से ट्रैफिक पुलिस और म्यूनिसिपल ओहदेदारों की जानिब से शहर के जुमेरात बाजार इलाके में वाक़ हर तबके की तरकारी फरोश, ठेला बंडियों पर फलों को फरोख्त करने वाले छोटे फुटपाथ ताजरों को हिरासा किया जा रहा है। काउंसिल के आखिरी इजलास से कबल मेयर निजामाबाद नीतू किरण और म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए फुटपाथ ताजरों को मास्टर प्लान तक न हटाने और इस खुसूस में म्यूनिसिपल इजलास में टेबल एजेंडे को शामिल करते हुए करारदाद की मंजूरी, मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की जरूरत पर जोर दिया गया था। ताहम आज मुनाकिदा इजलास में मजलिस के मुतालिबे को नजरअंदाज करने पर एहतजाज किया गया। मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट से जुमेरात बाजार फुटपाथ ताजरीन की नुमाइंदगी मुकामी मजलिसी कायदीन ने हुकाम से नुमाइंदगी की थी और दोबारा वहां कारोबार की इजाजत दिलाई। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल और पुलिस हुकाम सिर्फ छोटे कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे, जबकि कुम्हार गली, देवी रोड, खलीलवाड़ी, म्यूनिसिपल सर्कल व दीगर मुकामात पर मॉल्स, स्वीट होम, खानगी दवाखानों की वजह से ट्रैफिक मसाइल दरपेश है। ताहम हुक्काम इन बड़े कारोबारी इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि गरीब छोटे ताजरों को इंसाफ दिलाने मजलिस हमेशा उनके साथ रहेगी। को ये निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गालिबन आखिरी जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे इश्यूज जो एजेंडे में थे और साथ ही साथ एमआईएम पार्टी तमाम यूनिट के साथ एक एजेंडे में स्ट्रीट वेंडर्स के ताल्लुक से टेबल एजेंडे में हमारी बात रखी थी कि ये भी टेबल एजेंडे में रखा जाए, क्योंकि गुज़िश्ता 2 महीने से ये देखने में आ रहा था, खुसूसन वीकली बाजार में, गंज के अतराफ और बहुत सी जगह पे जो रोजमर्रा लोग आके अपना पेट भरने के वास्ते जो कारोबार कर लेते थे रोड के एक साइड बैठकर, उनको हटाने की एक साजिश के तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इनकी सिक्योरिटी के लिए इनके वास्ते एमआईएम पार्टी आगे आई और भरपूर एहतजाज करते हुए जुमेरात बाजार पर उनको वापस वहीं बिठाया, क्योंकि ये काउंसिल अभी एक हफ्ते में खत्म होने वाली है। तो हम चाह रहे थे कि ये जो इशू है, ये इशू गरीबों के लिए, खुसूसन निजामाबाद में 5000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स अलग अलग तौर पे काम करते हैं। तो इस बात को लेकर हमने हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास ये तमाम चीज को पेश किया, ताकि ये गरीबों को हम कैसा मदद कर सके। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप गरीबों के लिए काम कीजिए और उनके सिक्योरिटी के लिए काम कीजिए। तो उस ज़िम्मन में हमने एक मेमोरेंडम मेयर मैडम को भी दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया कि स्ट्रीट वेंडर के ताल्लुक से 2014 का जो कानून है, उस कानून को रूबे अमल लाते हुए इनकी सिक्योरिटी कीजिए, इनको हिफाजत कीजिए, क्योंकि 5000 फैमिली ये बगैर किसी दूसरे इनकम के यही डेली वेजेस पे काम करते, उनको खाने पीने का, उनके अपने बच्चे, बहुत सारे मसाइल पैदा होते, बल्कि तो ये एजेंडे में नहीं रखा गया। फिर बाद में 1.5-2 घंटे के बहस के बाद
मेयर मैडम अपने चैम्बर में तमाम फ्लोर लीडर्स को बुलाकर ये बात तय पाई कि एजेंडे के अलावा, टेबल एजेंडे के अलावा हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो रेजोल्यूशन में यही था कि 2014 का जो स्ट्रीट वेंडर उसको कानून को लेते हुए और निजामाबाद में मास्टर प्लान जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है इनको हम वहीं रखेंगे, बल्कि एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए बात रखी गई। सारंगपुर में तबलीगी जमात के इज्तिमा का इतवार से आगाज, आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस नौजवान शिरकत करें। इज्तिमा की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, रूह परवर समा, दीनी महफिलें वो इज्तिमा खैर व बरकत के नुज़ूल और अल्लाह को राज़ी करने मनवाने का अहम जरिया। शिरकत की पुरखुलूस अपील। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। अल्लाह चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत, ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत। उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत, उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तबलीगी जमात जिला निजामाबाद व मेदक पर मुश्तमिल 3 रोज़ा इज्तिमा का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा। आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस नौजवानों से ख्वाहिश की जाती है कि वो 3 रोज़ा इज्तिमा में शिरकत करें। 19 जनवरी को नमाज ज़ोहर से क़ब्ल आगाज़ होगा और 21 जनवरी को नमाज ज़ोहर से क़ब्ल इख्तितामी दुआ की जाएगी। इज्तिमा CRP कैंप सारंगपुर बोधन रोड निजामाबाद में तमाम तर तैयारियाँ हो चुकी। इज्तिमा गाह के लिए 50 एकड़ अराजी को मुस्तहक किया गया। 26 एकड़ अराजी गाड़ियों की पार्किंग के लिए मख्तस की गई। निजामाबाद जिले के अलावा कई पड़ोसी अजला से हजारों फर्जंदाने तौहीद की इज्तिमा में शिरकत यकीनी है। 3 रोज़ा दीनी इज्तिमा में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज़ायदस 50,000 ता 60,000 फर्जंदाने इस्लाम शिरकत करेंगे। 21 जनवरी को इख्तितामी दिन खुसूसी दुआ में शिरकत की गर्ज से मज़ीद हजारों मुसलमान शरीक होने का इम्कान है। तबलीगी जमात के इज्तिमाओं में इख्तिताम पर रिख्खत अंगेज दुआएं की जाती हैं। इज्तिमा में शरीक फर्जंदान इस्लाम आंसुओं की बहती कतारों के साथ आमीन की सदा बुलंद करते हैं। रोते हुए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी जाती है। इज्तिमा के दौरान अकाबरीन व उलमा इकराम के खुसूसी खिताबात होंगे, जिसमें दुनिया और मुल्क में मोहब्बत को आम करने और नफरतों को खत्म करने और भाईचारे का पैगाम दिया जाएगा। CRP कैंप में तबलीगी इज्तिमा के लिए कई वजूखाने तामीर किए गए। एक ही वक्त में सैकड़ों अफराद वजू कर सकते हैं। 8 ताम खाने कायम किए गए, जहाँ एक ही वक्त में कसीर तादाद में तनावुल व ताम का नज्म रहेगा। इज्तिमा के मौके पर शानबाग इलाके में बाजार कायम किया जा रहा है। इज्तिमा गाह के मुकाम पर वाक़ई मस्जिद सूर्या अंसारी में इस्तक़बालिया कमेटी का दफ्तर कायम रहेगा। मौजूदा मुआशरे में तलबा और नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं और उनका रोशन मुस्तकबिल तारीकों में ले जा रहे हैं। नौजवान नशे के आदी ना बने और अपनी सेहत पर तवज्जो देते हुए मैदान में आए। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़ेरे एहतमाम खेलो भारत उत्सव के इफ्तिताई तकरीब से किया खिताब। शहर के GG कॉलेज मैदान में स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़ेरे एहतमाम खेलो भारत उत्सव के इफ्तिताह के मौके पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा कि ये काबिल तारीफ है कि विद्यार्थी परिषद खेलो भारत के नाम से स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर तलबा में हुब्बुल वतनी, जिस्मानी और ज़हनी ताकत को फरोग देने का जरिया है। अंदेशा है कि आज तलबा और नौजवान मंशियात के आदी होने से रोशन मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा।
एमएलए ने मंशियात का नशा छोड़कर जिस्मानी और ज़हनी ताकत बढ़ाने के लिए मैदान में आने की अपील की। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद मरकज़ी हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही। खेलो इंडिया के नाम पर कई खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए बुनियादी ढांचे की सहूलियात फराहम की जा रही। उन्होंने आज के नौजवानों पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान की तरक्की में अहम रोल अदा करें। इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी राज सागर, कन्वीनर शिशी, सुनील दिगर भी मौजूद थे। వజ్ర సంకల్పంతో ఒక 100 మంది యువకుల్ని ఇస్తే దేశ అభివృద్ధిలో అత్యంత వేగం అభివృద్ధి చెందుతుందని, దేశం అభివృద్ధిలో ముఖ్యంగా యువకుల పాత్ర ముఖ్యమని తెలియజేసిన వ్యక్తి. ఏదైతే గత 10 సంవత్సరాల నుండి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వివేకానంద సూక్తుల్ని, ఆయన మాటల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్, ఖేలో భారత్ స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఏ ప్రభుత్వం కూడా స్పోర్ట్స్కు ప్రోత్సాహం ఇచ్చినంత, వీరిచ్చినంత ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వలేదు. కేంద్రం ఒకవైపు క్రీడల్ని ప్రోత్సహిస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భవిష్యత్తులో ఒక స్థాయికి ఎదిగే దిశగా స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే, तेलंगाना मात्रम शॉर्ट सर्किट से नुज़रत नगर में मकान जलकर खाकस्तर, बेवा खातून शदीद परेशान, माली बहरान का शिकार, आशियाना उजड़ जाने से खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। इमाम वफद ने फौरन पहुंचकर हालात का जायजा लिया, हर मुमकिन इमदाद का तयक़ुन। अहले खैर हजरात आगे आए, दर्दमंदाना अपील। डिवीज़न 11 नुज़रत नगर इलाके में सुबह की अव्वलिन सातों में एक गरीब खातून का मकान शॉर्ट सर्किट से जलकर खाकस्तर हो गया। मजलिसी कायदीन ने दौरा करते हुए एमआरओ को इत्तला दी और मुतासरा खातून को आफत बंधु स्कीम के तहत फंड मंजूर करने के लिए नुमाइंदगी की। मकान पूरी तरह जल जाने से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। तालीमी सर्टिफिकेट भी आग की नजर होगी। मदद करने के ख्वाहिशमंद अफराद मुतासरा खातून के भाई अब्दुल हमीद के सेल नंबर 9553799640 पर रब्त पैदा करें। पहाड़ी है, हमारी बच्ची यहाँ रहती, नुज़रत नगर है ये, और जो है सो इनका घर जल गया, बेवा है इनको कुछ भी नहीं है। रात में तो बच्चों सबको निकाल दिए, मगर पूरा घर का सामान जल गया, कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ मदद कर सकते तो करो। गवर्नमेंट तेलंगाना से अपील करता हूँ, मेरे बहन का घर जल गया और इमाम वाले आए, आके जो सके वो करे, इमाम वालों से भी अपील करें, फ़ोन करते पहले आगे वो लोग देखने के लिए, और एमआरओ साहब से और कलेक्टर साहब से और अपील कर रहा हूँ कि जो सके जो होता मदद करो। 3 बच्चे हैं, शादियों के बच्चे, 2 बच्चों की शादियाँ हैं। निज़ामबाद कलेक्टर साहब से भी अपील है कि कुछ मदद करो। इंसानी खिदमत ही बेहतरीन खिदमत। रोटरी क्लब ऑफ जेम्स की जानिब से 10 खवातीन में सिलाई किट्स की तकसीम। मेहमान खुसूसी आरडीओ राजेंद्र कुमार ने की शिरकत। निजामाबाद शहर के वागदेवी डिग्री कॉलेज में रोटरी क्लब ऑफ जेम्स के ज़ेरे एहतमाम हफ्ते को 10 खवातीन में सिलाई मशीन तकसीम की गई। आरडीओ राजेंद्र कुमार ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि न सिर्फ ये कि मुआशरा हमें क्या देता है, बल्कि वो ख्याल भी जो हम समाज को दे रहे हैं। आरडीओ ने रोटरी क्लब ऑफ जेम्स के मेंबरान को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने खवातीन में सिलाई मशीन तकसीम की। खवातीन को मशवरा दिया कि वो मशीन से फ़ायदा उठाएं। इस प्रोग्राम में क्लब सदर, सेक्रेटरीज पी श्रीनिवास, गौरी शंकर, साबिक सदुर सूर्य प्रकाश, राम प्रसाद दीगर भी मौजूद थे। उर्दू रोजनामा मुंसिफ के कैलेंडर का आरमूर एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर रेड्डी के हाथों रस्म इजरा अमल में आया। मुल्क के नामवर अखबार उर्दू रोजनामा मुंसिफ हैदराबाद के कैलेंडर साल 2025 के आरमूर एमवीआई वेंकटेश्वर रेड्डी के हाथों रस्म इजराई अमल में आई। आरमूर एमवीआई वेंकटेश्वर रेड्डी ने इदारे रोजनामा मुंसिफ हैदराबाद की जानिब से खारैन के लिए मल्टी कलर कैलेंडर की शाद पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर बालकुंडा नुमाइंदा रोजनामा मुंसिफ मोहम्मद अब्दुल रफीक, नुमाइंदा मोहम्मद सादिक, क्राइम कंट्रोल रिपोर्टर आरमूर फैसल बिन फहद, आरमूर एमआईएम सदर मोहम्मद जहीर अली, एमआईएम सरगर्म कारकुन समीर, जरी मार्केट कमेटी डायरेक्टर मोहम्मद नवीद के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
रिटायर्ड मुलाजमीन, पेंशनर्स और उनके अफराद ख़ानदान के लिए मुफ्त लीवर स्क्रीनिंग टेस्ट और हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके से इस्तिफादा करें। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन जिला सदर राम मोहन राव का बयान। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन और मल्लू स्वराज्यम मेमोरियल ट्रस्ट मुश्तरका तौर पर 21 जनवरी की सुबह 10 बजे से शहर के मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट भवन नामदेवाड़ा में मुफ्त जिगर की जांच और सेहत कैंप का इनेकाद करें। इस मौके पर राम मोहन राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस मेडिकल कैंप में एडवांस फाइब्रोस्कीन के जरिए जिगर की सेहत का दुरुस्त अंदाजा लगाने के लिए ये टेस्ट मुफीद है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। पेंशनर्स और उनके अफराद खानदान इस मौके से इस्तिफादा करें। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर डॉक्टर्स हिदायत और मशवरे देंगे। उन्होंने वजाहत की कि डॉक्टर जैनी नेहरू, डॉक्टर रविंद्रनाथ सूरी, मेदे के माहिरीन डॉक्टर राहुल, डॉक्टर कौशिक दिगर इस मेडिकल कैंप में हिस्सा लेंगे। सीपीएम पार्टी इस माह की 25 ता 28 तारीख को संगारेड्डी कस्बे में अपना चौथा रियासती कन्वेंशन मुनाकिद करें। जिला सीपीएम सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। इस मौके पर महासभा के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में आई। सीपीएम पार्टी दफ्तर में तेलंगाना रियासत की चौथी महासभा के पोस्टर्स की रस्मी इजराई अमल में आई। इस मौके पर पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने बताया कि पार्टी का चौथा रियासती कन्वेंशन इस माह की 25 ता 28 तारीख संगारेड्डी कस्बे में मुनाकिद किया जा रहा है। पार्टी अरकान बृंदा किरत, बीवी रघुलू, पार्टी रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम और रियासती कायदीन असेंबली में शिरकत करेंगे। इसी तरह पार्टी कोऑर्डिनेटर प्रकाश किरात और विजय रघवन नुमाइंदा असेंबली में हिस्सा लेंगे। अरकान ने कायदीन से 25 तारीख को होने वाले जलसे आम में भरपूर शिरकत की अपील की। इस महासभा में पिछले 3 सालों के दौरान मरकजी और रियासती हुकूमतों के जरिए कई अवामी मसाइल पर जद्दोजहद की गई, उनका जायजा लिया जाएगा और आइंदा 3 साल की तहरीक की सरगर्मियां वज़ा की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक मजबूत अवामी जमात के तौर पर खड़े होने के लिए अक़दाम का फैसला किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी जिला सेक्रेटरी पी वेंकट रामलू, नूरजहां, जिला कमेटी के अरकान विघ्नेश, मंडल रियासती सदर वी आनंद दीगर भी मौजूद थे। సిపిఎం పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర 4వ మహాసభలు ఈ నెల 25 నుండి 28వ తేదీ వరకు సంగారెడ్డి పట్టణంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. 25వ తేదీ నాడు సంగారెడ్డి పట్టణంలో మహాప్రదర్శన బహిరంగ సభ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ బహిరంగ సభకి సిపిఎం పార్టీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు కామ్రేడ్ ప్రకాష్ కరత్, అట్లాగే బృందా కరత్, అట్లాగే బివి రాఘవులు గారు హాజరవుతా ఉన్నారు. వీరితో పాటు రాష్ట్ర ముఖ్య నాయకులు తమ్మినేని వీరభద్రం గారు, మిగతా రాష్ట్ర నాయకులందరూ కూడా పాల్గొంటా ఉన్నారు. ఈ మహాసభల్ని జిల్లా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కమిటీ పక్షాన విజ్ఞప్తి. हर कोई काम के दबाव से बाहर निकले। खेल जिस्मानी और जहनी सुकून के लिए ज़रूरी। निज़ामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जिला चीफ जस्टिस सुनीता कुंचाला ने विकला के क्रिकेट मुकाबले का किया इफ्तिताह और दिया मशवरा। जिला चीफ जस्टिस सुनीता कुंचाला ने निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम जमहूरिया के हिस्से के तौर पर हफ्ते को निज़ामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में विकला के क्रिकेट मुकाबले का बाकायदा इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने कहा कि हर शख्स कोई ना कोई काम करने के बाद थक जाता है, लेकिन खेलकूद से वो थकावट और जिस्मानी मशक्कत को भूलकर नए सिरे से ताज़ा हो जाते हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हर किसी को ऐसी हालत से बाहर निकलना चाहिए जहां वो काम के निज़ाम में पड़ जाते हैं और ड्रामे और गानों से दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि विकला और जज अपने पेशों में बहुत ज्यादा दबाव में और खेल से सेहत अच्छी रहती है। बार सदर एम जगन मोहन गौड़ ने कहा कि 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ किस्म के खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों के मुकाबलों के जरिए इनमें से हर एक में खेलों की महारत को जाहिर करने का मौका मिलेगा। तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल के रुकन एम राजेंद्र ने कहा कि अगर आप खेलते हैं तो आपको अनमोल खुशी मिलती है। इस प्रोग्राम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनिवास, सीनियर सिविल जज श्रीकांत बाबू, जूनियर सिविल जज हरि कुमार दिगर भी मौजूद थे। అలాగే స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా గేమ్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటారు ఈ వీక్ అంతా. ఈ సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా జనవరి 26 రిపబ్లిక్ డే నాడు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇది ఒక మంచి అంటే చేంజ్ ఉంటుంది. అందరికీ కూడా మైండ్ కూడా రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది, హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పటిలాగే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇలా సంవత్సరానికి ఒక్కసారి కాకుండా ఇది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ లాగా చేసి అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ సండే అయినా మంత్లీ ట్వైస్ అయినా కానీ అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా
స్టాఫ్ కానీ అందరూ ఇలా ఒక గేమ్స్ అలాంటివి ఏమన్నా అరేంజ్ చేసుకుంటే ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఉంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది. హెల్త్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. మనం చూస్తున్నాం చిన్న చిన్న వాటికే అంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలియని పరిస్థితి. అంటే ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా అందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో మన ఆరోగ్యం మనమే కాపాడుకోవాలి కాబట్టి అందరూ ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ రెగ్యులర్గా పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటాం. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल का आखिरी इजलास, इमाम का फुटपाथ ताजरों के लिए करारदाद मंजूर करने का मुतालबा वो एहतजाज। बीजेपी शंभुगुड़ी ताजरीन को बर्खास्त करने के लिए उतर आई एहतजाज पर। मेयर ने इजलास को किया मुलतवी। सेरोज़ा तबलीग इज्तिमा का 19 इतवार से आगाज। इज्तिमा की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। इज्तिमा गाह पर रूह परवर समा। आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की अपील। नौजवान नस्ल खुद को नशे का आदी ना बनाए, बुरी लतों से खुद को महफूज रखे, सेहत पर तवज्जो दे, खेल जिस्मानी व दिमागी नशोनुमा के लिए मुआविन। अर्बन एमएलए धनपाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।